ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदगमनं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातसगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं स्वाद्वैतस्वावधूतपरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीलाञ्चलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय आनंदमय लीला विग्रहाय हेमांग दिव्य छवि सुंदराय तस्मै श्री महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय श्रीजन्नवापतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सकल भक्तদের স্বাগত। আজকে আমাদের প্রাতঃকালীন শ্রীমদ্ ভাগবতমের ক্লাসে আজকে আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতমের স্কন্দ 11 অধ্যায় 30 শ্লোক নম্বর 2, যে অধ্যায়ের নাম হচ্ছে যদু বংশের অন্তর্ধান। যদু বংশ অর্থাৎ কৃষ্ণের বংশ, তার অন্তর্ধান মানে হচ্ছে ভগবান যে ভৌমলীলা প্রদর্শিত করেছিলেন, এই ভৌমলীলার মধ্যে ভগবানের যে বংশ যে কুল ছিল তাদের কিভাবে অন্তর্ধান হলো, কিভাবে তারা অপ্রকট হলেন, সেই সম্পর্কে বিস্তারিত এই অধ্যায়ের মধ্যে বর্ণনা করা আছে। শ্লোক নম্বর 2, স্কন্দ 11 অধ্যায় 30। ব্রহ্মশাপ উপসংসৃষ্টে সকুলে যাদবঋষভা প্রেয়সীম সর্বনেত্রাণাম তনুম সা কথম অত্যজাত। ব্রহ্মশাপোপসংসৃষ্টে সকুলে যাদবঋষভা প্রেয়সীম সর্বনেত্রাণাম তনুম সা কথম অত্যজাত। ব্রহ্মশাপোপসংসৃষ্টে সকুলে যাদবঋষভা প্রেয়সীম সর্বনেত্রাণাম তনুম সা কথম অত্যজাত। ব্রহ্মশাপোপসংসৃষ্টে প্রেয়সীম সর্বনেত্রাণাম তনুম সা কথম অত্যজাত। ব্রহ্মশাপোপসংসৃষ্টে সকুলে যাদবঋষভা প্রেয়সীম সর্বনেত্রাণাম তনুম সা কথম অত্যজাত। হরে কৃষ্ণ। শ্লোকের শব্দার্থ: ব্রহ্মশাপ, ব্রাহ্মণদের অভিশাপ দ্বারা উপসংসৃষ্টে বিধ্বস্ত হয়ে সকলে তার নিজ পরিবার যাদব ঋষভ যদুশ্রেষ্ঠ
প্রিয়সীম পরম প্রিয় সর্বনেত্রাণাম সকলের চোখে তনু শরীর স তিনি কথম কিভাবে অত্যজত ত্যাগ করেছিলেন। শ্লোকের অনুবাদ: ব্রাহ্মণদের অভিশাপের ফলে তার নিজকুল বিধ্বস্ত হওয়ার পর সকলের নয়নমণি যদুশ্রেষ্ঠ কিভাবে অন্তর্ধান হলেন। এই শ্লোক সম্পর্কে শ্রী জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে পরম পুরুষ ভগবান কখনো তার নিত্য জ্ঞানময় ও আনন্দময় দিব্য শরীর ত্যাগ করেন না। সেজন্য কথম শব্দটি সূচিত করে কিভাবে তা সম্ভব, যার অর্থ হচ্ছে প্রেয়সী সর্বনেত্রাণাম, চক্ষু এবং তার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের জন্য পরম আকর্ষণীয় আনন্দপ্রদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যরূপ ত্যাগ করা প্রকৃতপক্ষে সম্ভব নয়। হরে কৃষ্ণ। তো এই শ্লোকে এখানে এর পূর্বে এটি একটি কথোপকথন চলছে, যেখানে পরীক্ষিত মহারাজ প্রশ্ন করছেন এটি কিভাবে সম্ভব যে পরমব্রহ্ম ভগবান তিনি তার এই দেহকে যে শরীরের মধ্যে তিনি এসে তিনি যে দিব্য লীলাকে সম্পাদন করছেন এই জড়জগতে, তো তার যে দিব্য দেহকান্তি সেটিকে কিভাবে তিনি ত্যাগ করতে পারেন। আর কিরূপভাবে এটি সম্ভব যে ভগবান তিনি কোনো ব্যাধির তীরের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তার দেহকে ত্যাগ করে ফেললেন এবং সার্বিক রূপে তিনি আবার এই দেহকে এখানেই ছেড়ে তার নিত্য ধামে চলে গেলেন। এ তো সম্ভব জন্ম মৃত্যু যেগুলো এই জড়জগতের নিয়ম অনুসারে সম্পাদিত হয়, জড়বন্ধরে যারা বন্ধিত, কিন্তু ভগবান তো সর্বোপরি, সর্বকারণের মূল কারণ তিনি পরম ব্রহ্ম আদি, এবং তার সচ্চিদানন্দ ঘন এই শরীর যেটি পূর্ণরূপে দিব্য আনন্দময়, তার মধ্যে কী রূপভাবে সম্ভব। তো ভগবানের ইচ্ছে অনুসারেই জড় প্রকৃতি কার্য করে, কিন্তু ভগবান কোনোরূপভাবেই জড় প্রকৃতির অধীনস্থ নন। ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে সর্বকিছু নিয়ন্ত্রিত হবে। সে জায়গায় কীভাবে ভগবান বন্ধিত হচ্ছেন এই মায়ার মাধ্যমে, প্রভাবিত হচ্ছেন, এটি ভগবানের ইচ্ছা দ্বারা হচ্ছে। ভগবানই বলছেন না, আহম সর্বস্ব প্রভু মত্তা সর্বং প্রবর্ততে, তিনি আদি পুরুষ, আদি প্রভু, এবং তার থেকে সর্বকিছু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তো কিভাবে সম্ভব যে ভগবানের উপস্থিতি থাকা পরেও ভগবানের ইচ্ছার ব্যতিরে এটি সম্ভব যে কেউ ভগবানকে বধ করছেন এবং তিনি তার দেহকে একটি জড় জাগতিক ব্যক্তির ন্যায় মৃত্যুকে ধারণ করছেন। এটি সত্য আমরা জানি যে জাতশ্রহি ধ্রুব মৃত্যু ধ্রুবম জন্ম মৃত্যুশ্চ, যেখানে ভগবান বলছেন যার মৃত্যু হয়েছে তার জন্ম নিশ্চিত, যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু নিশ্চিত। এটি জগতের বদ্ধজীবের জন্য, ভগবানের জন্য কার্যকরী নয়। কিন্তু ভগবান এরূপ লীলার মাধ্যমে এই জড়জগতের লীলাকে সমাপ্ত করে তার নিত্য ধামে প্রবেশ করবেন, যেখানে ব্রহ্মাজি ভগবানের কাছে অনুমতি চাইছেন যে হে প্রভু, কৃপাপূর্বক এবারে আপনি আপনার লীলাকে সম্পাদন করে আপনার নিত্য ধামে প্রবেশ করুন। তো ভগবান কি করলেন, তার সমস্ত যদু বংশকে তাদেরকে এই অন্তর্ধান করলেন, করে তারপর ভগবান অন্তিমে গেলেন। তিনি এই উপদেশ ব্রহ্মাজিকে ব্যক্ত করেছিলেন। তো এখানে জীব গোস্বামী ব্যক্ত করছেন যে ভগবান কখনো এরূপভাবে দেহ ত্যাগ করেন না, এবং এখানে এই নির্দিষ্ট শ্লোকের মধ্যে কথম যে শব্দটি রয়েছে সেটির মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে যে কীভাবে সম্ভব, এটি কীভাবে সম্ভব যে ভগবান তিনি দেহকে ত্যাগ করছেন। আর প্রিয়সিং সর্বনেত্রাণাম, যে যিনি হচ্ছেন সকলের প্রিয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পরম আনন্দদায়ক, যিনি আনন্দপ্রদ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যিনি সদা সর্বদা নিত্যরূপে বিরাজমান, তিনি কিভাবে
তার পক্ষে সম্ভব যে এরূপ লীলা করে তার নিজ ধামে চলে যাওয়া, যেটি ভক্তদের জন্য অবিশ্বাসযোগ্য একটি বিষয়। তো যদু বংশের অন্তর্ধান সম্পর্কে শ্রীমদ্ ভাগবতমে এই নির্দিষ্ট শ্লোকে এই বিষয়টিকে ব্যক্ত করা হয়েছে। হরে কৃষ্ণ। আজ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। আচ্ছা, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হিন্দি? ওকে। এনিওয়ান এলস? ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হিন্দি? ওকে। হিন্দি? ওকে। তো আমি হিন্দি বলবো নাকি বাংলা? हाँ सबाई बुझबे? ओके। तो आज बहुत ही खास पवित्र दिन है। आज है भगवान की शक्ति का मूर्त प्रकाश, श्री रुक्मिणी देवी का आविर्भाव दिवस। हरि ओम। आज है रुक्मिणी द्वादशी। तो परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण, जिनको शास्त्र में बताया गया है कि सर्व कारण के कारण है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, सभी कारणों के मूल कारण परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण। उनमें दो तत्व हैं, उनसे बढ़ के इस जगत में कोई नहीं है। श्रील प्रभुपाद भी बता रहे हैं कि कृष्ण ही आदि मूल हैं, कृष्ण ही एक हैं और हम सबको कृष्ण का ही भजना करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कृष्ण किससे सृष्टि हुए हैं, कहाँ से कृष्ण आए हैं। कृष्ण से सब कुछ आया इस जगत में। अभी प्रश्न आ सकता है तो कृष्ण कहाँ से आए हैं? कृष्ण के ऊपर कोई नहीं है, जिसके लिए ही कृष्ण परम ब्रह्म भगवान है, जो सभी शास्त्र ही कहला रहे हैं देयर इज नो वन इक्वल टू हिम, देयर इज नो वन अबव हिम, कि उनके समान इस जगत में ना कोई है, ना उनसे बड़ा कोई है, जिसके लिए ही कृष्ण आदि पुरुष हैं। तो आदि पुरुष उनका दो तत्व है, एक है जहाँ पे विष्णु तत्व उनसे प्रकट हुआ है और एक है शक्ति तत्व। तो उनमें से जो विष्णु तत्व है वो है साक्षात बलराम जी, और बलराम के मूर्त विग्रह आदि शक्तियाँ जो चतुर्भुज के रूप से प्रकाशित होते हैं भगवान श्री कृष्ण से, और सभी प्रकार के कार्य को संपादन करते हैं, जो है क्या? संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, इस रूप से। तो भगवान का विष्णु तत्व में सबसे पहला अवतरण होता है बलराम के रूप से, और उनसे जाके आता है संकर्षण, फिर प्रद्युम्न, फिर अनिरुद्ध, फिर वासुदेव। ऐसे खुद को भगवान विभाजित करते हैं। वैसे ही श्रीमती राधा रानी, जो भगवान श्री कृष्ण के अंतरंगा आह्लादिनी शक्ति हैं, तो भगवान के वाम अंग से प्रकाशित हुए हैं। अब राधा रानी के शरीर से भी अनंत ऐसे शक्तियां प्रकाशित होती हैं, जिसको बोला जाता है शक्ति तत्व। तो राधा रानी से बने हैं अनंत लक्ष्मी देवी। जितने भी लक्ष्मी हैं, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, शत सहस्र लक्ष्मियाँ सेवा कर रहे हैं भगवान श्री विष्णु नारायण के वैकुंठ में। तो वो जितने भी लक्ष्मी देवी हैं सब मूर्त प्रकाश हैं राधा रानी के शरीर से, राधा रानी की शक्तियाँ हैं। तो राधा रानी की शक्तियाँ तीन रूप से प्रकाशित होती हैं। तो सबसे पहला राधा रानी का जो शक्तियाँ हैं वो सभी लक्ष्मी देवी बनती हैं और भगवान नारायण का सेवा करती हैं। दूसरा, जहाँ पे राधा रानी की सभी शक्तियाँ उनके सभी गोपिकागण, ब्रज गोपिका के रूप से प्रकाशित होती हैं, और भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न प्रकार के आनंद प्रदानकारी रूप से भी प्रकाशित होती हैं। तो ब्रज के गोपिकागण, द्वारका के महिषीगण और अनंत लक्ष्मी, इस तीन स्वरूप में शक्ति तत्व प्रकाशित होते हैं श्रीमती राधा रानी के अंग से। तो सबसे पहला हमने बताया लक्ष्मी देवी। तो अनंत लक्ष्मी सदा सर्वदा भगवान विष्णु के लिए सेवा में नियोजित हैं। तो भगवान के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन बना रहे हैं,
भगवान के चरण सेवा कर रहे हैं, भगवान जिससे प्रसन्न हो सदा सर्वदा लक्ष्मी देवी उन सभी सेवाओं में नियुक्त हैं। और उसके बाद आते हैं द्वारका महिषीगण, अर्थात द्वारका पत्नियां, जो द्वारका में भगवान श्री कृष्ण लीला संपादन किए। भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण दिव्य लीला अगर आप इस भूलोक में अगर देखेंगे, भौम वृंदावन में देखेंगे, तो सबसे अधिक समय भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से भी ज़्यादा, मथुरा से भी ज़्यादा कृष्ण रहे द्वारका में। तो द्वारका इतना प्रसिद्ध स्थान है, सबसे ज़्यादा कृष्ण वहाँ पे रहे लीला किए। और वहाँ पे कृष्ण जो विवाह किए थे महिषियों को, तो द्वारका पत्नियों को, वो सभी भी राधा रानी के अंग से ही प्रकाशित है। और वृंदावन में जो गोपीगण हैं, जो हम लोग देखते हैं राधा माधव अष्ट सखीगण, गोपी और अनंत कोटि गोपीगण के बारे में वर्णन किया गया है, तो वो सभी गोपीगण श्रीमती राधा रानी के अंग से ही प्रकाशित हुए हैं। तो ये जो द्वारका पत्नी गण हैं कृष्ण के, तो उन सभी द्वारका पत्नियों में मूल सबसे प्रथम जो पत्नी है वो है रुक्मिणी देवी। तो आज जो रुक्मिणी द्वादशी है, आज ही के दिन रुक्मिणी देवी का प्राकट्य हुआ था, तो उनका आविर्भाव दिवस के रूप में भी आज के दिन को माना जाता है। तो रुक्मिणी देवी वो साक्षात राधा रानी से प्रकट हुई है और राधा रानी के शक्ति तत्व है। तो रुक्मिणी देवी और राधा रानी में बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं है। जो सभी श्रेष्ठ गुण राधा रानी के अंदर हैं, वैसे ही गुण रुक्मिणी देवी के भी अंदर में है। तो राधा रानी के अंदर जो गुण हैं, उसमें से कुछ गुण रुक्मिणी देवी के अंदर में भी नहीं है। रुक्मिणी देवी के अंदर जो सभी गुण हैं, वो सब गुण राधा रानी के अंदर उपस्थित हैं, लेकिन राधा रानी के अंदर कुछ खास गुण हैं, वो सब गुण रुक्मिणी देवी के अंदर नहीं है। जिसके लिए राधा रानी है, रुक्मिणी देवी राधा रानी नहीं बन सकती। तो लीला संपादन करने के लिए राधा रानी के अंग से रुक्मिणी देवी प्रकाशित हुई। और रुक्मिणी देवी के बारे में बहुत सारे तत्व श्रीमद् भागवतम में बताए गए हैं। बहुत सुंदर सुंदर मधुर लीलाएं हैं कृष्ण रुक्मिणी देवी का। तो इनमें से बहुत ही प्रसिद्ध है जो रुक्मिणी मंगलम श्रीमद् भागवतम में आता है। तो रुक्मिणी देवी विदर्भ राजा के कन्या थी और वो विदर्भ राज्य में थी। वो तो उनके बड़े 5 भाई थे और छोटी बहन थी रुक्मिणी, और सबसे बड़ा भाई जो था उसका नाम था रुक्मी, जो कृष्ण विद्वेषी था, कृष्ण को नहीं मानता था। तो रुक्मी एक उच्च कुल के होने के बाद में भी ज़्यादा से ज़्यादा पापी, दुराचारी, दुष्ट लोगों के साथ संग करता था। जैसे शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध आदि। तो उसका प्रिय मित्र था शिशुपाल। तो शिशुपाल के साथ उसने चिंता किया कि मेरे बहन रुक्मिणी का विवाह देंगे। तो रुक्मिणी देवी तो मन से ही पूर्ण रूप से कृष्ण में खुद को अर्पण कर दी थी। तो रुक्मिणी देवी साक्षात राधा रानी के प्रकाश मूर्त स्वरूप है। तो रुक्मिणी देवी बचपन से ही उनके राजप्रासाद में राजकन्या थी। तो राजकन्या होने के नाते वहाँ पे उनके सभा में बड़े बड़े सब व्यक्तियाँ आते थे और रुक्मिणी के रूप सौंदर्य को देख के आश्चर्यचकित रह जाते थे कि ये वैकुंठ के अनंत कोटि सुंदर लक्ष्मियों को भी तुच्छ कर दे। इतना सुंदर रूप सौंदर्य था किसका? रुक्मिणी देवी का। तो रुक्मिणी देवी के पास जाके ब्राह्मण लोग और सभी बड़े बड़े व्यक्तियां कृष्ण के महिमा गाते थे कि कृष्ण ऐसे हैं, इतने सुंदर हैं। ये सब क्यों बोलते थे? कि रुक्मिणी देवी के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम हो। तो रुक्मिणी देवी कभी कृष्ण को देखे नहीं, कभी दर्शन नहीं किए थे। पहले सिर्फ कृष्ण के बारे में सुने थे कि कृष्ण कितने सुंदर हैं, कृष्ण का रूप
लसत पंजल किंजल का पीत कौसे वास समद्भूत रूप सम्राजित कौस्तुभा मुक्त कंदरम मत्तद्दीप कलया परीतम वनमालया करार हार वलया क्रीटांगद नूपुरम। कृष्ण का कैसा मधुर मनोहर रूप। तो उस रूप के बारे में चिंतन करके सुन सुन के कृष्ण के प्रेम में तन्मय हो गए। तो ऐसा नहीं है कि हर बार हम लोग कृष्ण को दर्शन ही कर पाएंगे। कृष्ण के बारे में जितना सुनेंगे कथा, तो सुनने मात्र ही हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट होगा। तो जैसे रुक्मिणी देवी सिर्फ कृष्ण के बारे में सुन सुन के ही कृष्ण में अपने मन को नियोजित कर देती, कृष्ण के चरण में, कृष्ण को देखी भी नहीं थी। तो इससे शिक्षा ऐसा है कि हम सभी को भी ज्यादा से ज्यादा कृष्ण कथा में रुचि रखना चाहिए। हम लोग ज्यादा कृष्ण के बारे में सुनेंगे, कृष्ण के रूप, गुण, लीला, महिमा, परिकर आदि के बारे में ज्यादा सुनेंगे, तो कृष्ण के प्रति हमारा प्रबल प्रेम होगा। और जब ये प्रेमी सबसे ज्यादा गाढ़ा स्तर पे पहुंच जाएगा, तब निश्चित रूप से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उसी का ही प्रमाण है रुक्मिणी देवी। तो रुक्मिणी देवी इतना कृष्ण के बारे में सुनी तो कृष्ण को मन दे बैठी और चिंता की, अगर हम किसी को पति के रूप से ग्रहण करेंगे तो कौन? वो साक्षात कृष्ण को ही ग्रहण करेंगे और किसी को नहीं। तो इसीलिए वो भगवान शिव और पार्वती का पूजा करती थी और उनसे प्रार्थना करती थी कि हे महादेव, देवदेव आदि, आप कृपा करें, हे माँ हर गौरी, हमको कृपा करें कि हम इस जगत अखिल नायक भगवान श्री कृष्ण, उनको अपने पति के स्वरूप में प्राप्त कर पाए। तो माँ दुर्गा और शिव के कृपा से रुक्मिणी देवी कृष्ण को प्राप्त कर पाई। तो रुक्मिणी देवी का विवाह शिशुपाल के साथ होने वाला था और उसी दिन कृष्ण रुक्मिणी को हरण करके लेके चले गए। हरि बोल। तो रुक्मिणी देवी पहले से ही सिद्धांत ले लिए थे कि कृष्ण को हम व्यक्त करेंगे कि हम कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। तो रुक्मिणी देवी एक चिट्ठी लिखी और लिख के एक ब्राह्मण के हाथ से विदर्भ राज्य से भेजी द्वारका में। तो ब्राह्मण देव गए और रुक्मिणी देवी के इस पत्र को भगवान श्री कृष्ण को प्रदान किया और कृष्ण को सुनाए कि पत्र में क्या लिखा है। तो कृष्ण सुन के बहुत ही प्रसन्न हुए, बहुत ही आनंदित हुए, प्रफुल्लित हुए। कृष्ण ही मन में मन चाहते थे कि विदर्भ राजा का जो कन्या है रुक्मिणी, वो बहुत ही सुंदर है। तो रुक्मिणी के रूप सौंदर्य के बारे में कृष्ण जानते थे और कृष्ण मनी मन विवाह भी करना चाहते थे। किससे? रुक्मिणी देवी से। तो इसीलिए कृष्ण का भी इच्छा पूर्ण हो गया और रुक्मिणी देवी भी प्रस्ताव भेजी। तो कृष्ण ब्राह्मण देव को बताएं कि ठीक है, हम विवाह से राजी हैं, हम रुक्मिणी देवी को विवाह करेंगे। तो तब वो ब्राह्मण इस संदेश को लेके जाके पहुंचा भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को लेके रुक्मिणी देवी के पास और रुक्मिणी देवी को व्यक्त किए कि कृष्ण आपके इस प्रस्ताव से राजी हैं। और रुक्मिणी देवी पूजा करने गई थी। कहाँ पे? विवाह के पूर्व में रीति ऐसा था, जो कुल देवता है भगवान, तो उनको पूजा करने का। जैसे वहाँ पे थे हरगौरी, तो उनको पूजा करने गए थे और मनी मन बार बार कृष्ण का चिंतन कर रहे थे। तो इतने में ही कृष्ण आ गए चुपके से एक रथ में बैठ के, दारुक नामक उनके सेवक के साथ 4 घोड़ा को लेके, और मंदिर के पीछे छुपे हुए थे। तो जब मंदिर में पूजा देके रुक्मिणी देवी सीढ़ी से उतर रही थी, तो मंडप में पहुंचेगी और रुक्मिणी के रूप को दर्शन करके शिशुपाल और वहां पे उपस्थित जरासंध आदि जितने भी बड़े बड़े दिग्गज व्यक्ति वर्ग थे, सभी मूर्छित हो गए। इतना सुंदर थी रुक्मिणी देवी का रूप। तो रुक्मिणी देवी को देख के ही वो लोग मूर्छित हो गए और इसी मौके में भगवान श्री कृष्ण मुहूर्त में ही हाथ पकड़े रुक्मिणी देवी का और तत्क्षणात रथ के ऊपर बिठाए और द्रुत भाग गए। तो हमारे आचार्यगण टीका में लिख रहे हैं कि जैसे एक शेर का शिकार अगर श्रृगाल आदि निम्न जात के पशु उसको लेके रखते हैं तो एक कलंक है। तो शेर का शिकार शेर करता है, तो ऐसे यहाँ पे शेर या फिर सिंह के जैसे आए कृष्ण और सभी श्रृगालों के बीच से अपने शिकार को छीन के लेके चले गए। तो
कृष्ण सिंह के समान है, गर्जन करके आए। और इतने बड़े बड़े योद्धा, प्रसिद्ध व्यक्ति, उनका इतना शक्ति, इतना प्रसिद्धि, सब कुछ रहते भी सबके सामने से, आंखों के सामने से कृष्ण दूत आए और रुक्मिणी देवी को हरण करके लेके चले गए। फिर रुक्मिणी देवी का सुस्वागतम किया गया द्वारका में। और रुक्मिणी देवी वो पहली स्त्री थी द्वारका पत्नियों में। तो कृष्ण के 16,108 द्वारका पत्नी थे, और उसमें से जो प्रिंसिपल, सबसे सीनियर मोस्ट, वो थी रुक्मिणी देवी। तो आज रुक्मिणी देवी का ही आविर्भाव दिवस है। रुक्मिणी द्वादशी के इस पवित्र दिन में हम सभी रुक्मिणी देवी के चरण में प्रार्थना ही रखते हैं कि हम लोग अपराध शून्य होके श्रद्धा के सहित सदा सर्वदा उनके सेवा में नियुक्त रहें। श्रील प्रभुपाद बताएं कि जहाँ पे हम लोग अगर रुक्मिणी कृष्ण का सेवा करते हैं तो इससे हम लोगों को कभी भी कोई जागतिक सुख का कमी नहीं होगा। जागतिक सुख मतलब कैसा? धन संपत्ति आदि कोई भी चीज़ का, क्योंकि लक्ष्मी नारायण है। और साथ ही साथ हम लोग को परम ऐश्वर्य प्राप्त होगा, सुनाम ख्याति प्राप्त होगा, आध्यात्मिक रूप से, जागतिक रूप से भी। तो अगर हम लोग रुक्मिणी कृष्ण का आराधना करते हैं, उनके दिव्य कथा को सुनते हैं, तो भगवान की कृपा से हमारे हृदय से भी जो दुष्ट प्रवृत्तियां आदि हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उसको भी हरण कर लेंगे। भगवान में समता है। जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय श्री श्री रुक्मिणी कृष्ण की जय। रुक्मिणी द्वादशी महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। समवेत भक्त वृंद की जय।